In the previous lecture, we have studied the program testing, development testing, and unit testing. In this lecture, we will cover the component testing and system testing in the development testing phase, test-driven development, release testing, and user testing. The first concept we have is component testing. We performed the unit testing, and now we assume that unit tests on the individual objects within the component have been completed. Then we test the composite components so that they focus on showing the component interface behaves according to its specification. Now let's consider a difference between unit testing and component testing, or the class and component. Class is actually the blueprint and component is the actual functionality of the blueprint. हमने कस्टमर की एक क्लास बनाई और कस्टमर की क्लास की जो फंक्शनैलिटी है वो कंपोनेंट में अचीव हो रही है. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि उस फंक्शनैलिटी को अचीव कर रहे होंगे उनकी एक पर्टिकुलर इंटरफेस होगी और उस कंपोनेंट को जब हम टेस्ट करते हैं तो वो कंपोनेंट टेस्टिंग कहलाती है. Now let's see the example. We have the example of online shopping system where the customer login, this is the first component, then the customer browse product, this is the second component. In third component, the specified products are added in the card, and after it payment is made in the fourth component, and confirmation is achieved in the fifth component. We have 5 components in this example. Every component is located with an interface. For example, login is interface 1, then the payment and payment through payment service provider is achieved through interface 2. So in the component testing, we test the different interfaces which are used to ensure that components are working correctly. What is an objective of interface or component testing? The objective is to detect the faults due to interface errors और invalid assumption about interfaces. अब interface error क्या है या invalid assumptions क्या हो सकती हैं interface की, वो हम next slide में discuss करते हैं. There are 3 types of interface error. The first is interface misuse. Interface misuse का मतलब ये है कि एक कॉलिंग कंपोनेंट है जिसने किसी दूसरे कंपोनेंट को कॉल किया और उसकी इंटरफेस को यूज़ किया, लेकिन जो पैरामीटर्स उसने इंसर्ट किए वो उसने रॉन्ग ऑर्डर में इंसर्ट कर दिए, तो एक इंटरफेस को मिसयूज़ किया गया है. देन इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग. एक कॉलिंग कंपोनेंट ने कॉल्ड कंपोनेंट के बारे में एक अजम्पशन अपने जहन में बना ली और उस अजम्पशन की वजह से जो बिहेवियर उसने एक्सपेक्ट किया एक इंटरफेस से वो इनकरेक्ट बिहेवियर उसको मिला. तो ये इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग की कैटेगरी में आ गया. या ऐसा हो सकता है कि इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग में एक एग्जांपल अब यहाँ पे ये इंक्लूड कर सकते हैं कि लेट्स से पासवर्ड रिक्वायर किया है एक इंटरफेस ने. अब वो पासवर्ड आपने इस तरह से एंटर किया कि उसमें कोई भी सिंबल ऐड कर दिया, लेकिन इंटरफेस मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि वो सिंबल वहाँ पर नहीं आना चाहिए था. Then we have the timing errors. In the timing error, the called and the calling component, we have 2 components. We are talking about 2 components when we are studying the concept of interface error. So these 2 components, called and calling component, operate at different speeds. और इन different speeds की वजह से जब वो operate कर रहे हैं तो out of date information access हो रही है, तो इस तरह के errors को हम timing error कहेंगे. So इन errors को identify करने के लिए we use the interface testing, और interface testing बेसिकली located है आपके components के साथ,
और ये एक सब कैटेगरी है कंपोनेंट टेस्टिंग की. Then we have the third type of development testing, which is the system testing. It is written in the slide that system testing during development involve integrating components to create a version of the system and then testing the integrated system. First of all, we develop the unit, then we integrate the unit and perform the component testing, and in the last phase we integrate all the components and perform the system testing. Let's say अगर हम करीम एप्लीकेशन की बात करें, इसमें पिकअप लोकेशन एक यूनिट टेस्टिंग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है. देन या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि कस्टमर इज़ द यूनिट टेस्टिंग, कस्टमर क्लास. देन there we integrate two components, two or more than two components in the system testing. Then we perform the component testing, and after the component testing we use the system testing, such as we test the whole system, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप ऑफ लोकेशन, और उसके बाद कैप्टन की सारी इन्फॉर्मेशन और फिर राइड बुक करना. जब हम इस पूरे सिस्टम को टेस्ट करेंगे तो ये सिस्टम टेस्टिंग कहलाएगी. The focus in system testing is testing the interaction between component, के मुख्तलिफ components आपस में किस तरह से interact करेंगे. System testing check that components are compatible, interact correctly, and transfer the right data at the right time across their interfaces. I hope you understand this point कि हमारे पास जो गोल है सिस्टम टेस्टिंग के लिए वो ये है कि हमने इन कंपोनेंट्स को जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या वो ठीक तरीके से डाटा पास कर रहे हैं, वो कंपैटिबल हैं. इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम सिस्टम टेस्टिंग के अंदर चेक करते हैं. देन वी हैव यूज़ केस टेस्टिंग. यूज़ केस टेस्टिंग क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि हमें सिस्टम टेस्टिंग करनी है. और यूज़ केस जिस तरह हमने UML डायग्राम में भी देखा था, सिस्टम की इंटरेक्शन को शो करते हैं जो कि बेसिस बनते हैं सिस्टम टेस्टिंग के लिए. हम उन तमाम यूज़ केसेस को टेस्ट करेंगे. ईच यूज़ केस इन्वॉल्व सेवरल सिस्टम कंपोनेंट्स, सो टेस्टिंग द यूज़ केस फोर्सेस दीज इंटरेक्शन टू अकर. और बिल्कुल इसी तरह होगा कि जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ केस में इन्वॉल्व होंगे, हम उन तमाम इंटरेक्शन को सिस्टम टेस्टिंग के अंदर टेस्ट करेंगे. The sequence diagrams associated with the use case document the components and interaction that are being tested. अब हमने UML की use case diagram में ये स्टडी किया था कि इस use case को हम sequence diagram में यूज़ करते हैं. इसी को देखते हुए हम सिस्टम की इंटरेक्शन को sequence diagram में मॉडल करेंगे. तो हमारे पास जो UML सीक्वेंस डायग्राम है उनके थ्रू हम कंपोनेंट्स की और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उनको टेस्ट किया जाता है. उसकी बेसिस पे टेस्ट केस लिखे जाते हैं. देन टेस्ट डाटा उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, और उस टेस्ट डाटा को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसकी टेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है. सो इन द सिस्टम टेस्टिंग वी हैव डिफरेंट टेस्टिंग पॉलिसीज़. Exhaustive system testing is impossible, so testing policies which define the required system test coverage may be developed. एक पूरे सिस्टम को मल्टीपल टेस्ट केसेस को यूज़ करते हुए जो कि दे कैन बी न्यूमेरियस, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट केसेस डेवलप करना वैलिड इनपुट को यूज़ करते हुए, इनवैलिड इनपुट को यूज़ करते हुए, इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम कुछ टेस्ट पॉलिसीज़ बना लेते हैं. जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि अगर एक सिस्टम 1 से लेके 1000 तक इनपुट रिसीव कर रहा है, तो हर इनपुट के अगेंस्ट एक टेस्ट केस बना के सिस्टम को टेस्ट करना, ये एक एग्जॉस्टिव सिस्टम टेस्टिंग हो जाती है. इसको अवॉइड करने के लिए हम कुछ टेस्टिंग पॉलिसीज़ पे काम करते हैं या उनको हम यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं टेस्टिंग पॉलिसीज़ की? ऑल सिस्टम फंक्शन डेट आर एक्सेस थ्रू मेन्यूज शुड बी टेस्टेड. लेट से एक एप्लीकेशन है, इसमें एक मेन्यू बना हुआ है. अब मेन्यू में जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम टेस्ट करेंगे.
कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस दैट आर एक्सेस थ्रू द सेम मेन्यू मस्ट बी टेस्टेड। हो सकता है कि एक फंक्शन आपने सेलेक्ट किया, उसके आगे एरो बना हो, आप उस फंक्शन के बाद एक नेक्स्ट फंक्शन को ओपन करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस भी टेस्ट किए जा सकते हैं सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। वेयर यूज़र इनपुट इज़ प्रोवाइडेड, ऑल फंक्शंस मस्ट बी टेस्टेड विद बोथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट इनपुट। लेट से हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड चाहिए लॉगिन करने के लिए, या रजिस्ट्रेशन के लिए हम यूज़र से कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हम सिस्टम को करेक्ट इनपुट भी प्रोवाइड करेंगे और इनकरेक्ट इनपुट भी प्रोवाइड करेंगे। इस बेस पे हम पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं। तो ये कुछ टेस्टिंग पॉलिसीज़ हैं जो कि यूज़ की जाती हैं एग्जॉस्टिव सिस्टम टेस्टिंग से बचने के लिए। So at this point we are done with the development testing phases, which are 3: unit testing, component testing and system testing. Now we are moving towards the test driven development. Test driven development is an approach to program development in which you interleave the testing and code development. अब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर हम प्रोग्रामिंग के बाद टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक फ़ेज़ कंप्लीट करने के बाद दूसरे फेज़ पे नहीं आ रहे, बल्कि हम टेस्टिंग और कोडिंग दोनों साथ साथ कर रहे हैं। और ये किस तरह से पॉसिबल होगा? टेस्ट आर रिटन बिफोर कोड एंड पासिंग द टेस्ट इज़ द क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट। हम कोड इम्प्लीमेंट करने से पहले टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में टेस्ट केस लिख देते हैं और उसके बाद जब डेवलपमेंट होगी, टेस्ट पास होगा तो नेक्स्ट फेज़ डेवलप होगा। अगर टेस्ट पास नहीं हुआ तो उसी फेज़ को दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी को करेक्ट किया जाता है। यू डेवलप कोड इंक्रीमेंटली अलॉन्ग विद द टेस्ट फॉर दैट इंक्रीमेंट। इसमें सारा कोड एक साथ नहीं लिख देते, बल्कि इंक्रीमेंट्स में कोड लिखा जाता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कोड लिखा जाता है। You don't move on the next increment until the code that you have developed pass the test. जब तक एक टेस्ट पास नहीं होगा आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे मूव नहीं कर सकते। Here you can see the graphical representation of test driven development. First of all, you identify the functionality of the system or define a interface, define in increment. जब हम इंक्रीमेंट डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद हम टेस्ट लिखते हैं। टेस्ट लिखने के बाद टेस्ट को रन किया जाता है। टेस्ट को जब रन किया जाएगा तो इनिशियली आपका टेस्ट फेल हो जाएगा क्योंकि आपने कोई कोड अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप दोबारा टेस्ट रन करेंगे और इसके बाद आपका टेस्ट पास हो जाएगा। अगर तो टेस्ट पास हो जाएगा, आप नई फंक्शनैलिटी आइडेंटिफाई करके उसके बारे में कोड लिखेंगे, देन उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपका कोड फेल हो जाता है तो आप इसी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करके उसे रीफैक्टर कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या होंगे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के? हम टिपिकल डेवलपमेंट करने के बाद टेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को क्यों इंपॉर्टेंट कह रहे हैं? क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स आपको स्लाइड पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। द फर्स्ट बेनिफिट इज़ कोड कवरेज। एवरी कोड सेगमेंट दैट यू राइट हैज़ एटलीस्ट वन एसोसिएटेड टेस्ट, सो ऑल कोड रिटन हैज़ एटलीस्ट वन टेस्ट। हर कोड सेगमेंट का एक टेस्ट उसी वक्त असाइन हो जाता है और साथ साथ कोड की टेस्टिंग होती जा रही है। Then we have the regression testing. It is developed incrementally as the program is developed. और इसमें हो क्या रहा है कि आप रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये है कि हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, अब उसमें जब नए मॉड्यूल्स ऐड होते हैं तो उन मॉड्यूल्स की टेस्टिंग की जाती है। इसको हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। मतलब आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हो कि अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट का एक मॉड्यूल था और स्टाफ का एक मॉड्यूल था। दो मॉड्यूल ऑलरेडी इसमें काम कर रहे थे। अगर हमने उसमें फाइनेंस का एक और मॉड्यूल ऐड किया है तो अब ये रिग्रेशन टेस्टिंग हो रही है कि नए मॉड्यूल ऐड करने के बाद प्रीवियस इफेक्ट तो नहीं हो रहे, पूरा सिस्टम आपका ठीक काम कर रहा है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग बेस बनती है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की कि आप इंक्रीमेंटली कोड को डेवलप कर रहे हैं, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप कोड को डेवलप कर रहे हैं और उसे चेक कर रहे हैं कि आपका प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। Then we also have simplified debugging and system documentation. Benefit of the test-driven development. The next phase
The next stage of the testing is release testing. Once we complete the development testing, now we move towards the release testing. हमने डेवलपमेंट के टाइम पे जितने भी डिफेक्ट्स थे उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ बिफोर हैंड ओवर द प्रोडक्ट टू द यूज़र हम रिलीज टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. रिलीज टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ पर्टिकुलर रिलीज ऑफ द सिस्टम दैट इज़ इंटेंडेड फॉर यूज़ आउटसाइड ऑफ द डेवलपमेंट टीम. अब डेवलपमेंट टीम बेसिकली टेस्ट कर रही थी, जो भी डेवलपर्स थे वो आपके यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग या कंपोनेंट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे. लेकिन अब डेवलपमेंट टीम से को यूज़ नहीं कर रहे हम. उनके अलावा हम एक पर्टिकुलर रिलीज़ सॉफ्टवेयर की करने से पहले एक अलग से टेस्टिंग टीम होगी जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगी. The primary goal of the release testing process is to convince the supplier of the system that is good enough for use. और ये इसलिए की जाती है ताकि हम उस पर वेरिडेशन कर सकें, वेरिफिकेशन कर सकें. वेरिफिकेशन में आपको याद होगा कि हम सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सिस्टम डेवलप करना चाह रहे थे. तो ये जो आपकी रिलीज़ टेस्टिंग है ये वेरिफिकेशन को इंश्योर कर रही है. Release testing is usually a black box testing process where tests are only derived from the system specifications. There are two types of testing. One is black box testing and another is white box testing. In the black box testing, internally कोड क्या कर रहा है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती टेस्टिंग टीम को. वो इनपुट से या यूज़र की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एक्सपेक्टेड आउटपुट या सिस्टम का बिहेवियर ऑब्जर्व करती हैं. लेकिन जब हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में विद इन सिस्टम किस तरह से कोड किया गया या क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी वो सारी विजिबल होती है, वो सब नज़र आ रही होती है टेस्टिंग टीम को. जैसे कि यूनिट टेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, बट रिलीज टेस्टिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जिसमें टेस्ट सिर्फ सिस्टम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक डेराइव किए जाते हैं. सो द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रिलीज टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग इज दैट अ सेपरेट टीम दैट हैज़ not been involved in the system development should be responsible for release testing. ये एक थर्ड पार्टी होगी जो कि सिस्टम को अपने पर्सपेक्टिव से अपने व्यू पॉइंट के मुताबिक टेस्ट करेगी और उसमें देखेगी कि सिस्टम का बिहेवियर क्या है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं, यूज़र ने जो रिक्वायरमेंट्स दी थी उसी तरह सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं. System testing by the development team should focus on discovering bugs in the system. Defect testing. The objective of release testing is to check that system meets its requirement and is good enough for the external use. Validation testing. Then we have performance testing. और performance testing release testing की एक कैटेगरी है. Part of release testing may involve testing the emergent properties of the system such as performance and reliability. हम अक्सर आपने ये सेंटेंस सुना होगा और हम सब सुनते हैं कि ये सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है या इस एप्लीकेशन की क्या परफॉर्मेंस है, इसकी रिलायबिलिटी क्या है. तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को, इस तरह की चीज़ों को जब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को जब हमें चेक करना होता है तो हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और परफॉर्मेंस टेस्टिंग रिलीज टेस्टिंग में की जाती है. परफॉर्मेंस टेस्ट यूजुअली इन्वॉल्व प्लानिंग अ सीरीज ऑफ टेस्ट वेयर द लोड इज स्टेडीली इंक्रीज्ड अंटिल द सिस्टम परफॉर्मेंस बिकम अनएक्सेप्टेबल. पहले सिस्टम को 5 लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उसे 10 यूज़र यूज़ करेंगे, 100 यूज़ करेंगे, या फिर सिस्टम अगर मेमोरी यूज़ कर रहा है, रैम यूज़ कर रहा है तो पहले थोड़ी रैम यूज़ की जाती है, फिर ज़्यादा यूज़ की जाती है. इस तरह करते करते सिस्टम की रैम को इंक्रीज़ कर दिया जाता है. यानी सिस्टम का कोई भी रिसोर्स है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते हैं और देखते हैं कि सिस्टम कहाँ तक सही परफॉर्म कर रहा है, किस पॉइंट तक, और किस पॉइंट के बाद उसकी परफॉर्मेंस अनएक्सेप्टेबल हो रही है. स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग. रिलीज टेस्टिंग की एक एग्जांपल है परफॉर्मेंस टेस्टिंग
और परफॉर्मेंस टेस्टिंग की एक एग्जांपल है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में सिस्टम इज़ डेलिबरेटली ओवरलोडेड टू टेस्ट इट्स फेलियर बिहेवियर। हम सिस्टम की फेलियर बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और उसे डेलिबरेटली ओवरलोड करते जाते हैं। After studying the release testing, now we have user testing. In the user testing, user or customer provide input and advice on system testing. What is the difference between comprehensive system release testing and the user testing? The difference is that now the system is deployed on the user's working environment, which have a major effect on the reliability, performance, usability and robustness of the system. These cannot be replicated in the testing environment. एक सिस्टम जब यूज़र की वर्क इन्वायरमेंट में रन हो रहा है और वहाँ उसकी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और डिफरेंट फैक्टर को एनालाइज किया जा रहा है, वो टेस्टिंग इन्वायरमेंट में कभी भी नहीं किया जा सकता. Now in the next slide we will see the types of user testing. We have three types of user testing: alpha testing, beta testing and acceptance testing. In alpha testing, user of the software work with the development team to test the software at the developer side. Developer side पर ही user को engage किया जाता है और system की performance को analyze किया जाता है. In the beta testing, software is given to the users जो कि उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है. आपने अक्सर देखा होगा कि एक ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर्स का अपलोड कर दिया जाता है, जिसे यूज़र्स डाउनलोड करते हैं और उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसे रिपोर्ट करते हैं. Then we have the acceptance testing. In the acceptance testing, customer test a system to decide whether or not it is ready to be accepted from the system developers and deployed in the customer environment. कस्टमर अपनी इन्वायरमेंट में जब सिस्टम को डिप्लॉय करेगा उसके बाद वो कुछ टाइम सिस्टम को एनालाइज करता है और वो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा या उसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगी, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होंगी, वैलिडेशन की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि इस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना. एजाइल मेथड्स एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. In this slide you can see the difference of acceptance testing in the traditional methods and the agile method. In agile method, the user is part of the development team and is responsible for making decisions on the acceptability of the system. Here the user is now part of the development team. जिस तरह हमने agile method में स्टडी किया था कि यूज़र इन्वॉल्व होता है और उसमें कोई भी चेंजेस अगर लेके आने हैं किसी भी जगह पे सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि agile methods में फ्लेक्सिबिलिटी होती है. बिल्कुल इसी तरह टेस्टिंग फेज़ में भी यूज़र इन्वॉल्व होगा और वो डिसाइड करेगा कि सिस्टम एक्सेप्टेबल है या नहीं है. यूज़र ही उन टेस्ट केसेस को डिफ़ाइन करता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रन किए जाते हैं, इंटीग्रेट किए जाते हैं सिस्टम के साथ, और जब उसमें चेंजेस भी आते हैं उसके बावजूद हमारे सिस्टम की जो टेस्टिंग है वो साथ साथ परफॉर्म हो रही होती है. सेपरेट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एजाइल मेथड्स में नहीं होगी. एजाइल मेथड में सेपरेटली टेस्टिंग का फेज़ नहीं होता. So this is the difference of acceptance testing in traditional methods and in agile methods. In this lecture we have covered two stages of development testing, which is component testing and system testing. Then we studied test driven development, release testing and user testing. We have completed chapter number 8, that is software testing. I hope you get this chapter, but in case of any confusion we can discuss it in the live session. Thank you for listening, class.